Hello, good morning students. In previous videos we have studied about the different sources of textbooks and literature. Especially we tried to understand about the literature, that how do we get the detailed information about ancient past by the literature, and in which we have studied about different books written by famous writer and poet and court poet, in which you have studied about that such as Harshcharit by Banabhat and Abhigyan Sakuntalam by Kalidas and Arthashastra by Kautilya or Chandragupta or Vishnugupta. Sorry, Chandragupta not wrong. In this video we will try to understand and also tales by common people, some stories and some folk tales that were been narrated by ancient people, and by the generation by generation it transferred to our generation, and we also get information and detailed information about the past. Okay, in today we will try to understand about the science of ancient period and art and architectures, art and architecture and science. Let's try to understand what was the condition of science. In actually I told you in previous video that we have divided this chapter into 3 dimensions. One, we will try to understand about literature, and in second we will try to understand about the science, any books on science, theories and effort and works on science. Okay, so let's try to understand. Science made great progress during this period in the field of medicine and astronomy. इस समय में फील्ड मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में और मैथमेटिक्स के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा ग्रेट प्रोग्रेस किया भारत ने. आर्यभट्ट was the most famous astronomer and scientist of the ancient period. He is the author of the book of आर्यभट्टियम. आर्यभट्टियम जो बुक है वो लिखी गई किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा. हम बुक का नेम उसी तरीके से लिख रहे हैं जिस तरीके से हमने प्रीवियस वीडियो में समझने का प्रयास किया था. आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम written by Aryabhatta. In this book, he revealed that day and night are caused by the rotation of Earth on its axis and also gives a scientific explanation of eclipse. इसमें इन्होंने आर्यभट्टियम में आर्यभट्ट ने क्या बताया कि दिन और रात होने का कारण धरती का अपने रोटेशन पे घूमने का कारण है. ठीक है. अदर एस्ट्रोनॉमर वराहमिहिर, अदर एस्ट्रोनॉमर अगर देखें तो वराहमिहिर, जिन्होंने पंच सिद्धांतिका लिखा, पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर ने लिखा, and developed several subdivisions of astronomy like astrology and horoscopes. In the field of medicine, Charak wrote Charak Samhita. Charak Samhita, Charak Samhita. by चरक. इसी तरीके से आप आगे देखेंगे सुश्रुत संहिता, बाई सुश्रुत. ये दोनों मेडिसिन के मतलब मेडिसिन के फील्ड में, फील्ड ऑफ मेडिसिन में सुश्रुत और चरक ने क्या किया? अपना योगदान दिया साइंस के क्षेत्र में. कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, यू नो दैट डेवलप्ड बाय a little inscription of zero was recorded on the Sankhel crop plate found in Gujarat.
CE 584 to 586. This prevailed the way of decimal system which simplified the counting and calculation. और अब आप जानते हैं जीरो का जो इन्वेंशन या उसका यूज, उसकी जो उसके उस कॉन्सेप्ट को डेवलप्ड करना मैथमेटिक्स में, ये आर्यभट्ट का मतलब दिया हुआ चीज़ है। ये अगर हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें, अगर हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें, साइंस में हमारा काफ़ी बेहतर अंडरस्टैंडिंग रही थी साइंस में। अगर हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं हमारा जो पहला डायमेंशन आ रहा है, जो मेटलर्जी, हमारा जो पहला डायमेंशन आ रहा है जो कि मेटलर्जी है। मेटलर्जी मतलब धातु कर्म होता है, धातु कर्म, यानी जो हम मेटल को हम किस तरीके से प्रयोग करके, किस तरीके से हमारा काम होता था, हम मेटालिक जो हमारी चीज़ें उसको हम कैसे प्रयोग करते थे, इसकी द आयरन पिलर ऑफ महरौली दिल्ली इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आयरन वर्क स्किल ऑफ एंशिएंट इंडियन क्राफ्ट्समैन। भारत के प्राचीन इतिहास के लोगों को लोहे की जानकारी का जो सबसे बेहतरीन हमें एग्जाम्पल मिलता है, वी गेट दिस फ्रॉम दिल्ली महरौली। जो आयरन पिलर है कि वो किस तरीके की मेटलर्जी थी, कि जो अभी भी आप अगर इमेज में देख पा रहे होंगे तो आयरन पिलर जो महरौली में है न्यू दिल्ली में, ये किस तरीके से इन्होंने आयरन को पिघला करके और किस तरीके से उसको बिल्ड किया रहा होगा। और आज के लगभग इतने समय पहले 2000 लगभग 1500 ईयर्स पहले, तो एक काफ़ी प्रॉस्पेरियस जो उनकी जो टेक्नोलॉजी लगती है कि किस तरीके से किया गया होगा। इट इज़ 7.2 मीटर हाइट, लगभग 7.2 मीटर हाइट है, वेट लगभग 3 टन का है, 3 टन का, और 1500 पहले इसको इस तरीके से बनाया गया। द इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर मेंशन्ड ए रूलर नेम चंद्र। इसके ऊपर जो वो पिलर के ऊपर जो रूलर का नेम लिखा है वो चंद्र लिखा सिर्फ। दिस पिलर इज वंडर इन द itself because it has not rested till date। अभी उस समय से लेकर के इसमें जंग नहीं लगी है। मेकिंग इवन मॉडर्न टेक्निक्स वंडर अबाउट द टेक्निक्स यूज टू मेक इट। हम अभी भी इस तरीके की टेक्निक को प्रयोग करने में हमें काफ़ी चैलेंज है। इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम इस टेक्नोलॉजी को प्रयोग करने में हमें अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे हैं। तो साइंस में या चाहे हमारी जो मेटलर्जी है, साइंस मतलब मेटलर्जी साइंस में ही आ जाएगी। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हम देखेंगे कि आर्ट आर्किटेक्चर में, आर्किटेक्चर का मतलब हो जाएगा कि बिल्डिंग निर्माण की जो कला थी। अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें, आर्किटेक्चर मतलब बिल्डिंग निर्माण, आर्ट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। मेनी स्तूपाज, चैत्याज, वर्षिफाल, बिहाराज and temples were constructed during this period. During this period, this type of construction were constructed. These are great source of knowledge about the past. They tell us how they were constructed. हम जो स्तूपाज या बिहाराज या किसी प्रकार की जो मंदिर या किसी प्रकार की जो बिल्डिंग्स पाते हैं, ये हमें उस समय के कंस्ट्रक्शन मतलब स्किल के बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। या उनके ऊपर जो पेंटिंग हुई रहती है या किसी प्रकार की पेंटिंग होती है, वो भी हमारे बहुत यूजफुल होते हैं। हमारे उस समय की लाइफ और पीपल ऑफ दैट इरा को अंडरस्टैंड करने में हमें काफ़ी हेल्प करते हैं। किंग एंड प्रिंसेस बिल्ट मोस्ट ऑफ द एंशिएंट मोनूमेंट्स एंड टेम्पल्स। फॉर सम ऑफ दीज बिल्डिंग्स मनी वाज डोनेटेड बाय रिच मर्चेंट्स। उस समय का जो भी ये बिल्डिंग से इमारत बनती थी, उसमें जो धनाढ्य लोग होते थे उनसे क्या होती थी पैसे या मदद किया जाता। गिल्ड, क्राफ्ट्समैन, ओनर, इंडिविजुअल डोनर इंक्लूडिंग वोमेन, 100 ऑफ पीपल वर्कड इन दीज बिल्डिंग्स। स्तूप कौन होते थे? स्तूपाज। बुद्धिज्म प्लेड ए वाइटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर दैट कंसिस्टेड ऑफ बिहाराज और मोनेस्ट्री। बिहार जहाँ पर बौद्ध मॉन्क्स जो होते थे वो निवास करते थे, आराम करते थे, और चैत्य होते थे, प्रेयर हॉल होते थे, एंड स्तूपाज जहाँ पर उनकी अस्थियों को रखने का और ये प्रचलन हुआ करता था। द वर्ड स्तूपाज मीन्स ए माउंट, एक माउंट पीक की तरह बना रहता है। आप देख सकते हैं कि सांची का स्तूप दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है। देयर वर सेवरल काइंड ऑफ स्तूपाज बट
they have certain common feature. These are usually dome shaped structure were relict of the Buddha and Buddhist monk were kept. आप ऐसे इस तरीके से देख सकते हैं कि इस तरीके से अगर इसका फाउंडेशन अगर हम देखेंगे, इस तरीके का इसका फाउंडेशन, तो ये ऐसे टाइप का बना रहेगा, ठीक है। और कुछ डिजाइन विजाइन टाइप का बना हुआ है तो उससे कोई मतलब नहीं है। इस तरीके को स्ट्रक्चर से आप आर्ट में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर हम आगे के कॉन्सेप्ट को देखें तो दिस रेलिक्ट कास्केट वाज कवर्ड विथ अर्थ, लेटर लेयर ऑफ मड एंड बेक्ड ब्रिक्स वाज एडेड टू टॉप। फिर बाद में हम ईट और कुछ एडवांस चीज़ों को इसमें क्या करने लगे, इंक्लूड करने लगे, ठीक है। द पथ अराउंड द स्तूप इज नोन एज द प्रदक्षिणा पथ। इसके चारों तरफ का जो पथ होता है, रास्ता होता है, तो चारों तरफ का जो रास्ता, मतलब चारों तरफ से जो रहता है, जो रास्ता रहता है उसको क्या कहते हैं, प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इसको याद रखना सब लोग को, प्रदक्षिणा पथ। दिस पथ इज सराउंडेड विद द रेलिंग and its entrance is through the gateway. At a mark of devotion, devotees walked around the stupas in clockwise direction. जैसे आज कहीं पर हम कहीं धार्मिक स्थलों में जाते हैं तो वहाँ हम राउंड लगाते हैं पूरा। And his travel stories from Jatak and even ordinary people in their towns and villages. इसके बारे में अमरावती in Andhra Pradesh was the place where the magnificent stupas were existed. Stone carving and decoring the stup were made about 2,000 years ago. Biharaj monasteries were hollowed out of rocks. Some of these were decorated with sculpture and painting. तो स्तूपाज और साइंस और आर्किटेक्चर के बारे में हम आगे टेम्पल्स और पेंटिंग के बारे में थोड़ी सी स्टडी करने का प्रयास करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।